Hello students, good morning. Myself Sushil Rai from Green Valley English School. In class 12 history, we are going to discuss a very new topic, that is new devotional past, dialogue and descent in northern India. Many poets and saints engaged in explicit and implicit dialogue with these new social situation, ideas and institution. So during this Bhakti Sufi tradition and Bhakti Sufi phase, India was changing. In that situation, not only India was changing, the whole social situation is changing, the ideas were changing, the institution were changing. So many poet and saint engaged in explicit and implicit dialogue. Now each and every poets and saints were trying to engage themselves directly or indirectly with that situation. That means they were trying to give ideas, they want to say something directly or directly regarding these changes. Let us now see how this dialogue found expression. और कैसे वो express करते हैं? Let's see. We focus here on three of the most influential figures of that time, and now we will discuss about the three most influential figures of that time. The very first one is the Kabir, weaving a divine fabric. Kabir, 14th-15th centuries is perhaps one of the most outstanding examples of a poet saint who emerged within this context. और सबसे इम्पोर्टेंट इनका रोल है, इवन आप लोगों ने हिंदी में भी इनके बारे में बहुत सी कविताएं पढ़ी होंगी, दोहे पढ़े होंगे, दोहे सुने होंगे, इवन डे टू डे लाइफ में कोई ना कोई दोहा आपके सामने इनका आता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया में रिफॉर्मेशन जो लाया गया है वो कबीर के थॉट्स के थ्रू लाया गया है. इन्होंने काफ़ी सार्केस्टिक वे में रिलीजन के ऊपर चोट पहुँचाई है. जो भी हमारे सोसाइटी के ऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल्स थे उनके ऊपर डायरेक्ट चोट पहुंचाई किसी ने, तो कबीर ने, थ्रू हिज सार्केस्टिक वे ऑफ सेइंग थिंग्स. Historians have painstakingly tried to reconstruct his life and times through a study of composition attributed to him as well as later hagiographers. बहुत से हिस्टोरियंस ने कोशिश की है रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए उनके लाइफ, उनके टाइम्स, उनके जो भी थॉट्स थे, आइडियाज़ थे. Such exercises have proved to be challenging on a number of counts, but ये बहुत ही चैलेंजिंग फील हुआ है बहुत सी जगहों पर. Verses ascribed to Kabir have been compiled in three distinct but overlapping traditions. The Kabir Bijak is preserved by the Kabir Panth, the path or sect of Kabir in Varanasi and elsewhere in Uttar Pradesh. और यहाँ पे आपको एक नाम याद करना है, कबीर बीजक. यहाँ पे जितने भी रिटन चीज़ें थीं कबीर की वो सारी प्रिजर्व की गई हैं. इवन वाराणसी में माना जाता है कि उनका जो जन्म हुआ था कबीर का वो वाराणसी में हुआ था. यू कैन विजिट दैट पर्टिकुलर प्लेस, दैट होली प्लेस. सो नेक्स्ट इज द कबीर ग्रंथावली इज एसोसिएटेड विद दादू पंथ इन राजस्थान में एक दादू पंथ है जहाँ पे कबीर की ग्रंथावली रखी हुई है, वहाँ प्रिजर्व की गई है. एंड मेनी ऑफ हिज कंपोजिशन एंड फाउंड इन द आदि ग्रंथ साहिब में भी उनके बहुत सी कंपोजिशन को रखा गया है. All these manuscript compilation were made long after the death of Kabir. और ये कब मेंटेन की गई हैं, कब बनाई गई हैं? आफ्टर अ लॉन्ग डेथ ऑफ, उनके जीवन में उनकी मृत्यु होने के बाद बहुत दिनों बाद ये सब चीज़ें लाई गई हैं. By the 19th century, anthologies of verses attributed to him circulated in print in regions as far apart as Bengal, Gujarat और महाराष्ट्र. और इनके जो प्रिंटेड वर्जन्स थे, जो भी इनके वर्सेस थी, वो पूरे इंडिया में फैल गई, इवन बंगाल, गुजरात एंड महाराष्ट्र. राइट नाउ इट हैज़ क्रॉस द कॉन्टिनेंट ऑल्सो. In present scenario in 2020, I can say you with proper assurance that these verses have crossed the even continents. You can find it everywhere around the world. So Kabir's poems have survived in several languages and dialects. Some are composed in special languages of निर्गुण poets, संत भाषा, जिसको संत भाषा भी कहते हैं निर्गुण पोएट्स में को, और ये बहुत से लैंग्वेजेज में, बहुत से डायलेक्ट में, बोली में इनको कंपाइल किया गया है, रखा गया है, प्रिजर्व किया गया है. Others known as उलट बंसी, upside down sayings, are written in a form of in which everyday meanings are inverted. हर चीज़ की जो मीनिंग है वो इन्वर्टेड है, वो कोडेड है, you can say. These hint at the difficulties of capturing the nature of ultimate reality in words. Expressions such as lotus which blooms without flower or fire raging the ocean convey a sense of Kabir's mystical experiences.
और इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जो ऐसे एक्सप्रेशन हैं जो आपको अलग महसूस कराएंगे कि उनका कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंस भी रहा होगा लाइफ में, जहाँ पे वो एक समुद्र में आग लगा देना या लोटस दिखना विदाउट द ब्लॉसम विदाउट द फ्लावर, उनको खुशबू आती है कमल की लेकिन उसकी पुष्प नहीं है। ऐसे जो मिस्टिकल एक्सपीरियंस हुए हैं कबीर को, वो भी उन्होंने एक्सप्रेस किया है। Also striking is the range of traditions Kabir drew on to describe the ultimate reality. These include Islam. He described the ultimate reality as Allah, Khuda, Hazrat and Peer. He also used the term drawn from Vedantic traditions. Alakh, the unseen, Nirankar, formless. You have already seen in the Sikhism, Alakh Niranjan, निरंकार, you have already heard I think, ब्राह्मण्स, आत्मा एक्सेट्रा, ये सारी इवन आपने कभी रियलिटी में शायद उतना डीपली नहीं पढ़ा होगा, बट कबीर को जब आप पढ़ेंगे तो ही जो ट्रांस रिलीजियस पर्सन, उनकी जो कुछ भी राइटिंग्स हैं वो रिलीजन की बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के रिलीजन के ऊपर इंटरफेयर करते हैं। एंड ही नेवर स्ट्राइक्ड ऑन एनी पर्टिकुलर रिलीजन, तो किसी रिलीजन के ऊपर उन्होंने स्ट्राइक कभी नहीं किया। उन्होंने जो भी ऑर्थोडॉक्स डॉगमेटिक प्रिंसिपल्स थे हर एक रिलीजन के, उन सब के ऊपर उन्होंने डायरेक्ट चोट पहुंचाई है। अदर टर्म्स विथ मिस्टिकल कोनोटेशन सच एज शब्द, sound or sunya, emptiness were drawn from yogic tradition. Now let's see further. Diverse and sometimes conflicting ideas are expressed in these poems. कुछ diverse और sometimes conflicting, एक दूसरे से लड़ती हुई कुछ ideas थे, वो भी express किए गए हैं इन poems में. Some poems drawn on Islamic ideas and use monotheism and iconoclasm to attack Hindu polytheism and idol worship. देखिए अब यहाँ पे मैं एक कह रहा था कि हिंदुओं के ऊपर भी इन्होंने कुछ चोट पहुँचाई है, इस्लाम के कुछ आइडियाज़ पे भी इन्होंने चोट पहुँचाई है। ऐसा नहीं कभी इन्होंने किसी एक धर्म को टारगेट किया, जैसे हिंदू में पॉलीथिज्म है, मीन्स मल्टीपल गॉड्स के ऊपर इन्होंने डायरेक्ट बात कही है कि इतने भगवान तुम्हारे हैं, इतने देवी देवता हैं, तो उनके ऊपर डायरेक्ट उन्होंने चोट पहुँचाई अपनी बातों से कि गलत है, एक भगवान है, एक ईश्वर है। इवन इस्लामिक के आइडियाज़ को भी इन्होंने चैलेंज किया है। कुछ इस्लामिक आइडियाज़ ऐसे रहे हैं जो उनको लगता है कि ये अगेंस्ट द सोसाइटी है, अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी है, तो उन्होंने उससे ऊपर भी चोट पहुंचाई है। अदर्स यूज द सूफी कॉन्सेप्ट ऑफ जिक्र एंड इश्क लव टू एक्सप्रेस द हिंदू प्रैक्टिस ऑफ नम सिमरन, रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड नेम सिम। वर ऑल दिस कंपोज्ड बाय कबीर? वी मे नेवर बी एबल टू टेल द सर्टेनिटी। क्या सब कुछ कबीर ने ही बनाया है, कंपोज किया है? Right now we are not so much certain that उन्होंने ही बनाया है। Although scholars have tried to analyze the language, style and content established which words could be Kabir's, और उन्होंने जितने भी हमारे यहाँ स्कॉलर्स थे उन्होंने एनालाइज करने की कोशिश की है, इसको समझने की कोशिश की है। थ्रू व्हाट? थ्रू लैंग्वेज, स्टाइल एंड कंटेंट, कि ये उन्हीं की वाणी है, उन्हीं के शब्द हैं, उन्हीं का तरीका है, ये कबीर का ही ओरिजिनल कंटेंट है। What this rich corpus of verses also signifies is that Kabir and is to the present a source of inspiration for those who question entrenched religious and social institutions, ideas and practices in their search of divine. और जो भी कबीर ने क्या किया है, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। इन्होंने क्वेश्चन किया है, क्या क्वेश्चन उठाया है? प्रश्न उठाया है उन सोशल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, उन आइडियाज़ के ऊपर, उन प्रैक्टिसेस के ऊपर जो हमें आपको भगवान से या देवी देवताओं से या उस डिवाइन फोर्स से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन किया है जहाँ कहीं भी। जस्ट एज कबीर्स आइडियाज प्रोबेबली क्रिस्टलाइज थ्रू डायलॉग एंड डिबेट, explicit or implicit with the tradition of Sufis and Yogis in the region of our present-day Uttar Pradesh. His legacy was claimed by several groups who remembered him and continued to do so. और कबीर के प्रॉब्ली जो भी डायलॉग थे, डिबेट थे और ट्रेडिशन थे सूफी और योगीज के साथ, जो इस उत्तर प्रदेश के अवध प्रोविंस में था, अवध जैसे क्षेत्र में, जो मॉडर्न डे में आपका लखनऊ से लेके अयोध्या का क्षेत्र है, उस सारे क्षेत्र में बहुत से लोग हैं जिन्होंने क्लेम किया कि हम
कबीर पंथी हैं, हम कबीर को फॉलो करने वाले हैं, और वो आज भी कर रहे हैं, जो उनको रिमेंबर कर रहे हैं, इवन वो फॉलो भी कर रहे हैं आज भी। दिस इज़ द मोस्ट एविडेंट इन लेटर डिबेट्स अबाउट वेदर ही वॉज ए हिंदू और मुस्लिम बाई बर्थ। और ये आज भी एक क्वेश्चन मार्क है कि व्हाट ही वॉज, वेदर ही वॉज हिंदू और मुस्लिम, वो हिंदू थे कि मुस्लिम थे, ये भी कोई सर्टेन नहीं है राइट नाउ। Debates that are reflected in hagiographies, many of these were composed from 17th century onwards, about 200 years after the Kabir's lifetime। अब बहुत से ऐसे कंपोजिशन हैं जो कबीर के नाम पे हुई हैं, लेकिन उनके डेथ के 200 साल बाद भी वो अभी भी एग्जिस्टेंस में हैं। वो उनको कंपाइल किया गया है, उनको कंपोज किया गया है उनकी डेथ के 200 साल बाद, लेकिन वो मानते हैं कि दे आर फॉलोइंग द लाइनेज ऑफ कबीर। Hagiographies within the Vaishnava tradition attempted to suggest that he was born a Hindu. Kabir Das, Kabir itself an Arabic word mean great, but raised by a poor Muslim family belonging to a community of weavers, Julahas, who were relatively recent converts to Islam। और इसमें वैष्णव ट्रेडिशन के लोगों ने क्या किया है, उन्होंने ट्राई किया है, उन्होंने सजेस्ट किया है कि उनका जो जन्म हुआ था वो एक हिंदू परिवार में हुआ था, और उनका असली नाम कबीर दास था, और वो रेज किए गए, वो उनका जन्म किया, उनका पालन पोषण था वो एक जुलाहा फैमिली द्वारा किया गया, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी में रिसेंटली कन्वर्ट हुई थी, उनमें जो कि एक गरीब जुलाहा परिवार था जहाँ पे उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, उन्होंने उनका पालन पोषण किया है, बट अल्टीमेटली उनका जो जन्म था वो एक हिंदू परिवार में हुआ था। दे ऑल्सो सजेस्टेड दैट ही वॉज इनिशिएटेड इनटू भक्ति बाय ए गुरु परहैप्स रामानंद। और ये जो वैष्णव ट्रेडिशन वाले लोग हैं, इन्होंने ये भी कहा है कि वो एक गुरु के इन्फ्लुएंस में आते हैं, दैट इज नेम रामानंद, और उनके इन्फ्लुएंस में आके और ये सब कुछ करते हैं। ये जो भी सार्केस्टिक वे में जो क्वेश्चन करते हैं ट्रेडिशन के ऊपर, ये उन्हीं की वजह से होता है। So students, that's all for today. We will discuss this topic later on in the next class. Thank you so much.